Yes, sir. Yes, sir. Okay, very good. So, as title says, time response analysis. So, क्या होता है time response analysis? Can somebody say about it? What is time response analysis? वो फर्स्ट कट आइडिया क्या आता है टाइम रेस्पॉन्स एनालिसिस से? तो थोड़ा सा इसके बारे में बात करेंगे बिफोर वी स्टार्ट द क्लास. तो यस प्लीज. So today we will be learning time response analysis. So time response का मतलब क्या होता है? मतलब what is your understanding about time analysis? जब हम time analysis बोलते हैं तो इसका क्या मतलब होता है? So please tell me, don't hesitate. Whatever is in your mind, don't worry about it. So we will see it in detail today. So what is time response analysis? ओके, तो जिल सेड जो भी सिस्टम में अगर हम उसमें इनपुट अप्लाई करते हैं और उसका जो रेस्पॉन्स होगा वो टाइम रेस्पॉन्स होगा. तो एनीवन वांट्स टू ऐड टू दैट? कोई और अदर आंसर्स? We what is the meaning of time response analysis? What do we mean by it? Okay, so let's learn it. I mean, so what Jill said, it's partially right. अभी क्या होता है कि हम टाइम डोमेन की बात कर रहे हैं. So we have two kind of domains. First one is sorry, time domain, and second one is frequency domain. So we can do input, output, or system analysis either in time domain or in frequency domain. So here we have restricted our class today for time response analysis. तो अगर हम टाइम सिस्टम के रिस्पॉन्स का एनालिसिस टाइम डोमेन में करते हैं, इट मीन्स वी सी हाउ system is behaving with respect to time, or how output and input they are growing with respect to time. They are known as time response analysis or time response of the system. If we do the same thing in frequency domain, then the analysis will be in frequency domain and we will say it's a frequency response. So we have two kind of representation for the response of the system. First, time response, and second, frequency response. Okay. So how many of you have heard about the signal? सिग्नल का नाम सुना है किसी ने? और आर वी हेयरिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस क्लास? सिग्नल क्या होता है? एनीबॉडी? इफ यू डोंट नो अबाउट इट आल्सो, व्हाट लाइक सिग्नल का हमने डेली लाइफ में सुना होगा और किसी और कॉन्टेक्स्ट में सुना होगा, इफ नॉट इन द क्लास ऑफ कंट्रोल सिस्टम. सो क्या होता है सिग्नल? आई वांट यू टू लाइक टेल the whatever is in your mind, just say about it so that we will learn in a better way. Anyone? So okay, don't worry. So we will learn today about these things: time response analysis and signals. So first of all, let's see what is time response. So if the output of a control system for an input varies with respect to time, as I said, representation of input and output is with respect to time, then it is called time response of the control system. And time response consists of two parts: transient response and steady state response. So now, as you can see in the figure, we have both the state, transient and steady state response. So I would like to ask you all, can you give me any real time example
by mentioning transient state and steady state in the system. सर So please, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स हमको साइक्रोमीटर में मिलेगा। हाँ शुभम, please tell me once again. I missed something. Yeah. ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स सर साइक्रोमीटर में मिलेगा हमको, जो एयर वेलोसिटी वो सब मेजर करके देता है। वेरी गुड। तो शिवम ने बोला कि पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट के बारे में, तो ये तो और उसका जनरल आइडिया क्या है, मतलब किसी और सिस्टम में हो सकता है वो? चलो मैं बताता हूँ क्या होता है। वो सबने फैन का यूज किया है, इलेक्ट्रिक फैन जो होता है। और इलेक्ट्रिक फैन में क्या होता है कि उसका प्रोसेस क्या है, हम स्विच ऑन करते हैं और फैन मूव करना स्टार्ट होता है ना? तो जब फैन एक फिक्स्ड आरपीएम से मूव करता है, तब वो जनरली स्टेडी होता है, मतलब वो चेंज नहीं होता है अनलेस वी चेंज इट। तो मान लो कि जैसे हमने फैन का स्विच ऑन किया और फैन को लेट से मूव करना है 1000 आरपीएम पे, 1000 रिवॉल्यूशन पर मिनट। तो जैसे हम ऑन करते हैं, वो क्या होता है, फैन डायरेक्टली चला जाता है 1000 आरपीएम पे या थोड़ा टाइम लगता है? टाइम लगता है। टाइम लगता है। तो कैन यू टेल मी नाउ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ट्रांजिएंट और स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स, कौन सा पार्ट ट्रांजिएंट होगा और कौन सा पार्ट स्टेडी स्टेट होगा? और स्टेडी स्टेट यहाँ पे क्या है नंबर के टर्म्स में? सर कैन यू रिपीट द क्वेश्चन? हाँ, आई विल रिपीट द क्वेश्चन। मैंने बोला कि फैन का जब हम स्विच ऑन करते हैं, तो जनरली फैन क्या करेगा कि पर्टिकुलर एक स्पीड पे मूव करेगा। लेट्स से दैट स्पीड इज 1000 आरपीएम। नंबर कुछ भी हो सकता है, डोंट वरी अबाउट द नंबर। तो क्वेश्चन ये है कि जब हम फैन को स्विच ऑन करते हैं, तो आफ्टर सर्टेन टाइम फैन पिक्स अप अ सर्टेन स्पीड, और जिस इस और उस स्पीड से पहुंचने के पहले उसमें थोड़ा सा फ्लक्चुएशन आएगा। तो ये जो फैन का स्विच ऑन करने का फिनोमिना है और उसके स्पीड को मेंटेन करने का फिनोमिना है, उसमें ट्रांजिएंट रिस्पांस और स्टेडी स्टेट रिस्पांस और सिग्नल, तीन चीज है। तो कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज सिग्नल, व्हाट इज ट्रांजिएंट रिस्पांस एंड व्हाट इज स्टेडी स्टेट रिस्पांस? सर स्विच ऑन किया है तो हुआ और जीरो से ध्रुविल, आपकी आवाज कट रही है। कैन यू जस्ट एडजस्ट समथिंग? यस ध्रुविल, गो अहेड प्लीज। स्विच ऑन किया है वो सिग्नल हुआ। 0 आरपीएम से लेके 1000 आरपीएम तक हम जाएगा फैन, वो ट्रांजिएंट फेस होगा। और 1000 आरपीएम तक जो कांस्टेंट मूव करेगा वो स्टेडी स्टेट। सो वेरी गुड ध्रुविल। और हाउ अबाउट सिग्नल? सिग्नल क्या है इसमें? सिग्नल में हम इलेक्ट्रिसिटी से वेरी गुड। तो इलेक्ट्रिक सिग्नल है, और उसको कैसे हमने एक्टिवेट किया सिग्नल को? स्विच ऑन करके। ओके, वेरी गुड। तो ध्रुविल, थैंक यू सो मच फॉर योर आंसर। तो हम वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट ध्रुविल हैज एक्सप्लेन्ड। सो जब हम फैन का स्विच ऑन करते हैं, इट मीन्स वी आर सप्लाइंग सम सिग्नल टू द सिस्टम। अभी हमारे यहाँ पे जो सिस्टम है, दैट इज इलेक्ट्रिक फैन। फैन जो है वो हमारे लिए सिस्टम है, और सिस्टम का जो इनपुट होगा वो एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल है। और इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है उसका हमने एक्टिवेशन किया स्विच ऑन करके। जैसे स्विच ऑन किया, मे बी इट विल बी 220 वोल्ट और वट एवर ऑपरेटिंग वोल्टेज और इलेक्ट्रिकल सिग्नल इज रिक्वायर्ड, वो उसमें चला गया। तो सिग्नल का पार्ट ये हो गया कि दैट इज इलेक्ट्रिकल सिग्नल इन नेचर, और मोर प्रिसाइजली वी कैन से इट्स अप्लाइंग द वोल्टेज। तो हमने वोल्टेज अप्लाई कर दिया सिस्टम के ऊपर, तो ये सिग्नल का पार्ट कंप्लीट हो गया। नाउ जैसे ही हम ऑन करते हैं, वी ऑल्सो ऑब्जर्व कि ये धीरे से स्टार्ट होता है। इट्स नॉट लाइक एकदम से 1000 आरपीएम पे जाएगा और एनी पर्टिकुलर स्पीड पे जाएगा, वो थोड़ा टाइम लगता है। तो जब वो टाइम, जिस टाइम पे उसको स्टेडी स्टेट पहुंचने में जितना टाइम लगता है, दैट इज कॉल्ड द ट्रांजिएंट स्टेट और ट्रांजिएंट टाइम। तो 1000 आरपीएम से पहले पहुंचने का जो स्टेट है फैन का,
दैट इज कॉल्ड ट्रांजिएंट स्टेट। और जब वो 1000 आरपीएम पे पहुंच जाता है उसके बाद वो पर्टिकुलर स्पीड को मेंटेन करता है फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, देन वी कॉल इट एज स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स। तो हमारा सिग्नल हो गया यहाँ पे वोल्टेज, टाइम ट्रांजिएंट टाइम हो गया बिफोर अचीविंग स्टेडी स्टेट। जो फेज होता है, जो स्टेट होता है, दैट इज ट्रांजिएंट स्टेट। और वंस इट हैज स्टार्टेड मेंटेनिंग द डिजायर्ड स्पीड, तो ये हो गया स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स। कैन यू गिव मी सम अदर एग्जांपल? अभी तो मैंने इलेक्ट्रिकल फैन का दिया, और भी बहुत सारे मशीन्स हैं, कुछ भी। कोई और सिस्टम का एग्जांपल कैन समबडी टेल? देखिए ये हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है। माई अंडरस्टैंडिंग इज नॉट टू टीच यू अबाउट द बिग बिग टर्म्स, transient state, steady state, frequency response and time response. My idea is also to uh, explain you about the concepts, like इसका real time में use क्या हो रहा है। When I say transient state or steady state or time response, we should not be always in the textbook। हम टेक्स्ट बुक के बाहर उसको कैसे देखते हैं, टेक्स्ट बुक के बाहर क्या चल रहा होता है, why do we study such things, इसका इम्पोर्टेंस क्या है रियल लाइफ में, और ये कैसे हेल्प करता है एनालिसिस करने में। So I want you to tell me another examples what you see in daily life or you have seen at a specific place, and don't सर worry ओवन, about the answer. Yeah, please tell me, Shubham. सर ओवन। ओवन, माइक्रो ओवन या ओवन, ठीक है, वेरी गुड। और कैन यू टेल मी अबाउट दैट स्टेडी स्टेट, ट्रांजिएंट एंड सिग्नल? सर जितना हम टेम्परेचर सेट करते हैं, सपोज 45 डिग्री सेंटीग्रेड हमने सेट किया टेम्परेचर, तो उतना रीच हो तब तक ट्रांजिशन स्टेट रहता है। और वंस 45 डिग्री सेंटीग्रेड अचीव्ड, देन इट विल बी कंसीडर्ड एज स्टेडी स्टेट। Okay, very good, Shubham. I am very happy to hear your answer, and it's yes, this is what is our understanding. Any other examples from other friends? देखो मतलब क्या है ना कि व्हेन आई से वी आर लर्निंग कंट्रोल सिस्टम्स, तो हमको डरना नहीं चाहिए कि लाइक नाउ इट्स समथिंग इज बिग, हमने कभी पढ़ा नहीं है या पढ़ा है तो समझ में नहीं आया है। तो मुझे लगता है कि हम धीरे धीरे चीज़ों को समझ सकते हैं, एंड अगर हम डीपली ऑब्जर्व करें कि वॉट एवर थिंग्स वी ऑब्जर्व इन एंड अराउंड इन आवर डेली लाइफ, मोस्ट ऑफ देम आर कनेक्टेड टू सिस्टम एंड कंट्रोल। तो इसीलिए आई वांट यू टू गेट इनटू दैट डायरेक्शन कि हम बाहर की तरफ देखें, एंड वी ट्राई टू कोरिलेट दिस सब्जेक्ट और द अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंट्रोल सिस्टम विद द रियल टाइम एग्जांपल्स और रियल टाइम यूसेज। तो जितने सारे अप्लायंस हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स है या अदर फॉर्म में है, मोस्ट ऑफ देम दे रिप्रेजेंट सिस्टम। हमने पहले क्लास में ही बात किया डिटेल में। और हर एक सिस्टम का जनरली क्या होता है कि ट्रांजिएंट स्टेट होता है और स्टेडी स्टेट होता है। कुछ अप्लायंस है, जैसे आजकल के स्मार्ट टीवी आ रहे हैं, जैसे हमने रिमोट से स्विच ऑन किया, एकदम से स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरह के जो स्मार्ट डिवाइस होते हैं उसमें जो ट्रांजिएंट स्टेट होता है वो बहुत ही कम होता है। अगर आप लोगों में से किसी ने पुराना टेलीविजन सेट देखा होगा तो उसको स्टार्ट होने में बहुत टाइम लगता था, ब्लैक एंड वाइट टीवी हो या और भी पुराने टीवी हो, तो इतना जल्दी वो स्टार्ट नहीं होता था। इट यूज्ड टू टेक लिटिल मोर टाइम देन व्हाट टीवी टेक्स जनरली नाउ। तो हर एक डिवाइस का अपना स्टेट होता है, डिफाइंड स्टेट, ट्रांजिएंट स्टेट होता है। बट जो आइडिया है स्मार्ट डिवाइस बनाने का, उसका आइडिया ये है कि जो ट्रांजिएंट स्टेट का टाइम है उसको रिड्यूस किया जाए, उसको मिली सेकेंड में, नैनो सेकेंड में किया जाए। तो टीवी के जो ट्रांजिएंट स्टेट या ट्रांजिएंट टाइम होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं, और मोस्ट ऑफ द जेनेरिक स्मार्ट डिवाइस के जो ट्रांजिएंट टाइम होंगे वो बहुत कम होंगे, तो हमें पता नहीं चलेगा। लेकिन ट्रांजिएंट स्टेट और स्टेडी स्टेट हर एक डिवाइस में एप्लीकेबल है, राइट। तो ये था हमारा अंडरस्टैंडिंग अबाउट टाइम रिस्पॉन्स का जो दो पार्ट है, ट्रांजिएंट स्टेट और स्टेडी स्टेट। तो ट्रांजिएंट स्टेट में क्या होता है कि आफ्टर अप्लाइंग इनपुट टू द सिस्टम और कंट्रोल सिस्टम, जनरली आउटपुट टेक सर्टेन टाइम टू रीच द स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट का मतलब जो डिफाइंड स्टेट है किसी भी सिस्टम का। So the output will be in transient state till it goes to a steady state. तो steady state के पहले वाला जो state है that is transient state,
और स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स में क्या है कि द पार्ट ऑफ टाइम रिस्पॉन्स दैट रिमेन्स कांस्टेंट इवन आफ्टर ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स हैज जीरो वैल्यू फॉर लार्जर वैल्यू ऑफ टी। आई मीन जब वो लॉन्गर टाइम के लिए हम किसी सिस्टम के बारे में बात करते हैं एंड इट अचीव सर्टेन सेट पॉइंट or desired output, then that state is called steady state or a steady state response of the system. ये हो गया. Now coming to the signal once again. So we have certain standard test signals and they are known as impulse, step, ramp and parabolic. तो ये हमने मे बी बैचलर के फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा बेसिक मैथमेटिक्स कोर्स में सिग्नल्स के बारे में. और इम्पल्स जनरली ये हम पढ़ते हैं फंक्शन चैप्टर में. इम्पल्स फंक्शन, स्टेप फंक्शन और रैम्प एंड पैराबोलिक फंक्शन. तो हम इसके बारे में भी बात करते हैं. एंड आई वांट योर आंसर टू बी इन रियल टाइम अप्रोच rather than being mathematical or more physical, I mean like more physics based definition. So coming to definition or coming to understanding, so we have now four signals: impulse, step, ramp and parabolic. So can somebody tell me that real life में हम कैसे समझेंगे कि सबसे पहले जो सिग्नल्स का नाम मैंने लिया है impulse, step, ramp और parabolic. How many of you are aware about these signals? या mathematically कितने लोगों ने सुना है? So I assume that this is the first time or you might have forgot. तो impulse के बारे में बात करते हैं. We start from the first signal, impulse. तो impulse क्या हो सकता है? Can somebody tell? मतलब मेरा इस क्लास में ये है कि आप लोग बोलो खुल के कि क्या है वो, जो भी समझ में आता है. I'm not, as I always say, I'm not looking for the right answer. I'm looking for your understanding. और फिर हम उसको आगे एक्सप्लेन करते हैं. आगे भी ट्राई टू कोरिलेट विद द रियल टाइम एग्जांपल्स. तो इम्पल्स क्या हो सकता है? इम्पल्स मीन समथिंग सर, एक मेन पोजीशन लेंगे और उस मेन पोजीशन के अगेंस्ट कितना फ्लक्चुएट हो रहा है अप एंड डाउन. ओके. तो शुभम said it's about the mean position and also we study the fluctuation कि उसके अराउंड कितना फ्लक्चुएशन हो सकता है. Any other definition or example? Don't hesitate. Please tell whatever is your understanding. Don't worry about the right and wrong answer. So अभी अगर if you tell, then it will be really useful because most of you are targeting for core job or industrial job. So definitely when you go to industry, then you have to take care of the real time systems. You will get an opportunity to work on something more real, more concrete systems, and that is for sure that you will look the system beyond the textbook. So your understanding is something which will be valued. So please tell me in that sense. So ठीक है. Impulse, as Shubham said, it's partially right, but the thing is, I mean, how to correlate with real thing. We can take example of spring. We can take the example of spring, Shubham. And how do you explain that? Spring में क्या होता है? If we apply compressive or tensile force, then it will fluctuate. It will change the position. So we can find out how spring will Okay, we'll fluctuate. find out. तो इसमें हम बात कर रहे हैं इनपुट की. तो इनपुट में you have applied the force and if the force is sudden, jerk के तरह है, तभी वो that is called impulse. जैसे इसका एग्जांपल ये हो सकता है कि मैंने किसी सिस्टम पे, कोई मैकेनिकल सिस्टम है, उस पे हमने हैमर से फोर्स अप्लाई किया. तो वो जो ड्यूरेशन होता है सिग्नल का, अगर वो बहुत ही शॉर्ट टर्म टाइम का हो, मतलब जो टाइम है वो बहुत ही कम है, इट्स वेरी लेस, देन द अप्लाइड इनपुट विल बी इम्पल्स. जैसे हैमर हो गया और इवेंट फैन का हमने स्विच ऑन करके स्विच ऑफ कर दिया तुरंत से, तो उस तरह का जो इनपुट है वो इम्पल्स है, जो बहुत ही सडन होता है और शॉर्ट टाइम के लिए होता है. द इनपुट विच लास्ट फॉर अ वेरी स्मॉल टाइम, दैट इज नॉन एज इम्पल्स. जैसे बिजली का कड़कना हो गया, दैट इज ऑल्सो इम्पल्स. बिजली चमका पर थोड़े एकदम बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए,
वो थंडरिंग होता है। बादल का गरजना अगर शॉर्ट टाइम के लिए, दैट इज ऑल्सो एन इम्पल्स। हैमर का मैंने बताया वो इम्पल्स है। और कुछ नॉइज है स्पाइक की तरह है, वो नॉइज आया और तुरंत से चला गया, दैट इज इम्पल्स। सो द सिग्नल विच हैज वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन दे आर नोन एज इम्पल्स। और दूसरा क्या है, वो है स्टेप। तो उसी के कॉन्टेक्स्ट में स्टेप का क्या होगा? इम्पल्स का डेफिनेशन सबको समझ में आया? अभी उसका थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन भी हम देखेंगे। नाउ आई एम टेलिंग यू इन टर्म्स ऑफ रियल टाइम सिस्टम, और जो हमारा ऑब्जर्वेशन है आउटसाइड वर्ल्ड के लिए वो है। हाउ अबाउट द स्टेप इनपुट? सो आई टॉक्ड अबाउट 4 जेनेरिक इनपुट: इम्पल्स, स्टेप, रैंप एंड पैराबोलिक। तो स्टेप क्या हो सकता है? अभी हम लोगों ने एक एग्जाम्पल का बात किया था, वो था फैन का। फैन का स्विच ऑन करना वो क्या है, इम्पल्स है या स्टेप है? सिंस वी आर नॉट टॉकिंग, वी हैव नॉट टॉक्ड अबाउट रैंप एंड पैराबोलिक, कैन एनीबॉडी टेल फैन का स्विच ऑन करना वो इम्पल्स है या स्टेप है? स्टेप इनपुट। चलो, तो स्टेप मैं बता देता हूँ कि स्टेप पे क्या होता है कि व्हेन यू अप्लाई सम इनपुट and you also retain that magnitude for longer time, so that is known as step input। तो अभी बताओ कि फैन का जो स्विच ऑन करना है वो इम्पल्स में आएगा। इम्पल्स में क्या है कि हमने इनपुट अप्लाई करके छोड़ दिया उसको, मतलब इनपुट का जो एप्लीकेशन है बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, एंड देन अगेन इट विल गो बैक टू द नॉर्मल पोजीशन और द इनिशियल पोजीशन। तो फैन का स्विच ऑन करना स्टेप है या रैंप है, ये इम्पल्स है? इम्पल्स है सर। So Dhruvil said फैन का स्विच ऑन करना इम्पल्स है। वेरी गुड। I'll come to you, Dhruvil. Any other answer? मतलब बोलो, दो दो ही ऑप्शन है यहाँ पे, इम्पल्स और रैम्प। सो आई वांट ऑल ऑफ यू टू रिस्पॉन्ड टू इट। इम्पल्स होगा या स्टेप होगा? स्टेप होगा। स्टेप होगा, स्टेप। अमित सेड स्टेप होगा। एनी अदर आंसर? स्टेप होगा। पलनी सेड स्टेप होगा। नेक्स्ट। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज स्टेप, क्योंकि एज पर डेफिनेशन ऑफ इम्पल्स, इम्पल्स क्या होता है, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए अप्लाई होता है और फिर वो इनिशियल पोजीशन में पहुंच जाता है। जैसे हमने स्विच ऑन कर दिया है, तो अर्लियर इट वाज एट स्विच ऑफ पोजीशन, सो इट इज नॉट गोइंग एट स्विच ऑफ पोजीशन। ऑन किया तो ये ऑन ही रहेगा फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, एज लॉन्ग एज वी वांट, और एज लॉन्ग एज वी डोंट स्विच ऑफ द फैन। तो इसीलिए वो इम्पल्स नहीं होगा। इम्पल्स बहुत ही शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए होता है। अगर हमने स्विच ऑन करके तुरंत ऑफ कर दिया होता तो दैट इज नोन एज इम्पल्स, सडन जो इनपुट है। तो ये स्टेप इसीलिए हुआ क्योंकि इनपुट अप्लाई करने के बाद द मैग्नीट्यूड ऑफ इनपुट, सपोज हमने 220 वोल्ट का सप्लाई दिया, तो स्विच ऑन करने के बाद 220 वोल्ट का सप्लाई इलेक्ट्रिकल फैन में लॉन्गर टाइम के लिए रहेगा। दैट्स व्हाई फैन मूव्स एट सर्टेन स्पीड फॉर लॉन्गर टाइम। एज लॉन्ग एज इनपुट इज देयर, फैन रोटेशन विल बी देयर फॉर दैट पर्टिकुलर स्पीड। तो ये हमारा हो गया स्टेप के लिए। तो नेक्स्ट कम्स रैम्प। रैम्प में क्या होता है कि टाइम के साथ इनपुट चेंज होता है। एट टाइम ग्रोज इनपुट विल आल्सो ग्रो, एंड द ग्रोथ जो होता है वो लिनियरली होता है। तो इट इज नॉट लाइक ये फिक्स्ड रहेगा। ये जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा इसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा लिनियरली विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, और विथ रेस्पेक्ट टू सम वेरिएबल इफ यू वांट टू एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ सम अदर वेरिएबल्स। तो रैम्प का एग्जांपल कोई बता सकता है कि रैम्प सिग्नल क्या होगा?
ओके, तो रैंप में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल इफ यू हैव सीन द वेरिएबल पोटेंशियोमीटर, तो उसमें एक नॉब होता है और पोटेंशियोमीटर का जो फंक्शनैलिटी है वो ऐसा है कि अगर हमने नॉब को रोटेट किया तो इट विल चेंज द वोल्टेज। तो मान लो कि रोटेशन जो है वो 0 से 360 डिग्री है और पोटेंशियोमीटर का जो वोल्टेज का रेंज है दैट इज 0 टू लेट्स से 10 वोल्ट है। तो अभी जैसे जैसे हम रोटेशन को चेंज करेंगे वैसे वैसे वोल्टेज चेंज होगा। जब रोटेशन का नॉब 0 पे है तो वोल्टेज 0 दिखा रहा है, जैसे हमने उसको चेंज किया then it will start giving some output in terms of voltage. So if you change potentiometer, ये वोल्टेज को चेंज करता है। तो यहाँ पे जो इनपुट है वो लीनियरली वेरी हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम और आउटपुट जो है वो भी मेरा लीनियरली वेरी होगा। तो इस तरह के जो सिग्नल है जो टाइम के साथ वेरी कर रहा है लीनियरली, दैट दे आर नोन एज रैंप इनपुट। और पैराबोलिक में क्या होगा कि जो इनपुट का बिहेवियर होगा दैट विल फॉलो पैराबोलिक, मैथमेटिकली इट विल बी पैराबोलिक इन नेचर, जिसका साइज जिसका शेप होता है ऑलमोस्ट बकेट की तरह। वी विल सी नाउ। So I'll explain you about these signals. So standard test signals में we have impulse first. So as you can see in the slide, this is called the impulse signal. So यहाँ पे देखो कि at certain time at let's say 0, इसका impact बहुत कम टाइम के लिए है and then we don't have any magnitude before 0 and after 0. So at 0th second we have only one signal in existence that is known as sigma t. तो इस तरह के सिग्नल जो होंगे that is known as impulse signal। और इसका इनपुट का सॉरी इसका जो आउटपुट है इसका मैग्नीट्यूड अगर 1 हुआ then it is known as input impulse signal। सेकंड इज स्टेप सिग्नल। तो जैसे मैंने बोला कि once you have applied the input, let's say you have applied at t equals to 0 and it is retaining for longer time, it is retaining for the longer time, तो इस तरह का जो सिग्नल होगा दैट इज नोन एज स्टेप सिग्नल। So that is the definition of your step signal। तो एसेंशियली हमने अप्लाई किया इनपुट इस टाइम पे और इसके बाद जो सिग्नल का मैग्नीट्यूड है दैट रिटेन्स फॉर लॉन्गर टाइम यहाँ तक। और इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ आउटपुट इज 1, जो कि यहाँ पे 1 है, इट इज नॉन एज यूनिट स्टेप सिग्नल। अगर इसका 1 है मैग्नीट्यूड यूनिट स्टेप। सेकेंड वन इज द रैंप। रैंप में मैंने बोला था कि सिग्नल विल ग्रो विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो देखो ये लीनियरली ग्रो कर रहा है टाइम के साथ में। तो एक पोटेंशियोमीटर मान लो कि ऐसा होता है, इसका नॉब ऐसा होता है एंड इट हैज सम आउटपुट हियर। नॉब का रोटेशन करेंगे हम ऐसे, लेट्स से इट हैज 0 to 360 डिग्री रोटेशन एंड वोल्टेज का है 0 to 10 वोल्ट। तो ये नंबर चेंज होगा, ये 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 चेंज होगा। विथ रेस्पेक्ट टू टाइम योर signal is always growing, sorry, always growing linearly, so this is known as the ramp signal। और इसका अगर 45 डिग्री है एंगल या 1045 है तो वैल्यू 1 होता है, तो दैट विल बी नोन एज यूनिट रैंप सिग्नल। पैराबोलिक में मैथमेटिकली इट विल बी पैराबोलिक इन नेचर, सो इट्स समथिंग लाइक y इक्वल्स टू x स्क्वायर बाय 2 और x स्क्वायर और x स्क्वायर, इस टाइप का सिग्नल होगा। मतलब टाइम के साथ ये पैराबोलिकली इंक्रीज कर रहा है। और लेट्स से इन दिस केस pt इक्वल्स टू t स्क्वायर बाय 2, ये वाले एग्जांपल में तो ये ऐसे ग्रो कर रहा है, पैराबोलिकली ग्रो कर रहा है। तो दैट इज नोन एज पैराबोलिक सिग्नल। So these are the concepts for impulse, step, ramp and parabolic।
तो डेली लाइफ में भी इम्पल्स के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, स्टेप के एग्जांपल्स हैं, रैंप के एंड पैराबोलिक के। So if you want to understand in a depth, then we should try to observe the outside activity signal systems, and we should also try to interpret कि ये किस कैटेगरी में आता है, then it will make more sense to you. Now coming to the response of first order system, अभी क्या होगा कि जितने सारे सिग्नल्स के बारे में हमने बात किया है, we will try to do the analysis on the system, first order system. जैसे हमने बोला फैन के केस में हमने स्टेप अप्लाई किया, तो फैन का बिहेवियर हमने देखा कि फैन का बिहेवियर कैसा है, हाउ फैन इज रिएक्टिंग नाउ। तो इसी तरह से जनरली हमारे जो आसपास के सिस्टम्स होते हैं, और व्हेन वी ट्राई टू मॉडल देम मैथमेटिकली, तो या तो फर्स्ट ऑर्डर होंगे, सेकंड ऑर्डर होंगे, थर्ड ऑर्डर होंगे, फोर्थ ऑर्डर होंगे। तो जनरली मोस्ट ऑफ द सिस्टम्स का रिप्रेजेंटेशन फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर में ही हम करते हैं, और मैक्सिमम सिस्टम को हम ये दो ऑर्डर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर में। तो हमें ये देखना है कि अगर सिस्टम का मैथमेटिकल मॉडल फर्स्ट ऑर्डर है या सेकंड ऑर्डर है, तो जो टाइम रिस्पांस हमने अभी तक सीखा है सिग्नल का, इनपुट, स्टेप, रैंप एंड पैराबोलिक, इसका सिस्टम पे क्या रिस्पांस आता है। तो देखो ये दिस वेरी फैमिलियर ब्लॉक डायग्राम टू यू, so that was the idea of learning the block diagram, so that we can represent any system. So this system is nothing but a first order. Can somebody tell me why it is first order system? So please tell me how it is a first order system. ये first order system कैसे है? तो द डेफिनेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर से ये जो डिनोमिनेटर में s के टर्म्स होते हैं ना, ये इसका अगर डिग्री 1 है और ऑर्डर 1 है s का, तो ये फर्स्ट ऑर्डर है। अगर यहाँ पे एस स्क्वायर प्लस समथिंग होता है या एस स्क्वायर होता है, तो वो सेकंड ऑर्डर हो जाता है। तो एस के ऑर्डर डिग्री से हम सिस्टम का ऑर्डर को डिफाइन करते हैं। तो दिस इज अ फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। और वी हैव लर्नड इन अदर क्लासेस दैट अगर सिस्टम ऐसे है, जी है, तो इसका ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा, सी एस बाई आर एस। इसका ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा, व्हाट विल बी द ट्रांसफर फंक्शन फॉर दिस। तो दिस इज द ट्रांसफर फंक्शन फॉर दिस ब्लॉक। अगर ये यहाँ पे h होता, तो दैट वुड बिकम gh। ये हम लोगों ने किया है ट्रांसफर फंक्शन का रिडक्शन, ब्लॉक डायग्राम का रिडक्शन करके फाइंडिंग ट्रांसफर फंक्शन। ओके, तो सिमिलरली इफ वी ट्राई टू फाइंड द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ दिस फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम, यहाँ पे ये एक ब्लॉक है जो कि सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसका ये नेगेटिवली फीडबैक है इस तरह से। सो दिस इज योर इनपुट सिग्नल एंड दिस इज योर आउटपुट सिग्नल। ओके, तो जो आउटपुट सिग्नल होता है किसी भी सिस्टम का, ये होता है रिस्पांस ऑफ द सिस्टम, और ये जो इनपुट होता है वो इनिशियल जो हम अप्लाई करते हैं टेस्ट सिग्नल, वो इनपुट होता है। तो दिस कैन बी योर इम्पल्स, इट कैन बी योर स्टेप, इट कैन बी रैम्प, और इट कैन बी पैराबोलिक। पैराबोलिक। तो अभी जो हम नेक्स्ट स्टडी करने वाले हैं वो ये करेंगे कि फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में अगर ये आर एस जो है वो अगर इम्पल्स है या स्टेप है, रैम्प है, पैराबोलिक है, तो व्हाट वुड बी द रिस्पांस ऑफ द सिस्टम फॉर दीज स्टैंडर्ड इनपुट्स। तो देखते हैं क्या होता है इसके बाद। तो फर्स्ट लेट्स स्टडी अबाउट द इम्पल्स रिस्पांस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। अगर फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है तो उसका इम्पल्स रिस्पांस
कैसा होगा। तो इम्पल्स रेस्पॉन्स के लिए हमने क्या लिखा है इसको, ये रिस्पॉन्स है, क्योंकि सॉरी नॉट इम्पल्स रिस्पॉन्स, जनरल रिस्पॉन्स आउटपुट। तो हमें ये फाइंड करना है, अगर यहाँ पे इनपुट इम्पल्स है तो दैट विल बी नोन एज इम्पल्स रेस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम। अगर ये इनपुट स्टेप है तो दैट विल बिकम स्टेप रेस्पॉन्स ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। अगर ये रैंप है तो दैट विल बिकम रैंप रेस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम और फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। तो वी विल स्टार्ट विद इम्पल्स रेस्पॉन्स, और in impulse response, as I said, this is the input output relationship. This is becoming your impulse response. अगर ये sorry, response, तो लाप्लास डोमेन में इम्पल्स रिस्पॉन्स को 1 लिखते हैं। When I write 1, then it is necessarily for unit impulse response. देखो यहाँ पे RS पे हम ये वैल्यू पुट करेंगे, इनपुट 1 है तो when you put RS equals to 1, then it will become 1 by simply ST plus 1 times 1. इसको ऐसे कर दो, यहाँ से हमने T को कॉमन ले लिया, it will become S plus 1 by T. जनरली हम इसको S के टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं, S plus समथिंग इस तरह से। अब क्या हो गया, हमारे पास दो टर्म हो गए, ये वाला ये वाला। अब सबने पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ा होगा, उससे भी कर सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज इसका जो इनवर्स लाप्लास है इस सिग्नल का वो होगा, ऐसे होता है 1 बाय एस प्लस ए का लाप्लास इनवर्स होगा e टू द पावर माइनस ए टी, ये ए है। तो लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 बाय 1 एस प्लस 1 बाय टी will become e to the power minus 1 by t minus sorry 80 ना 1 by t times t, so let's write t by t। और ये जो भी अगर मान लो कि यहाँ पर अल्फा है तो इट विल बिकम सिंपली अल्फा, अल्फा है तो अल्फा। तो इस केस में अगर हमने 1 by t रखा है तो ये 1 by t हो जाएगा, 1 by t। इसका जो 1 by t है ना वो ये कांस्टेंट है, ये बाहर भी आ जाता है ऐसे 1 by t टाइम्स e टू पावर माइनस t by tau, ये। और ये ut मतलब whatever your input is there, so since it is 1 then it will become 1 by t e to the power minus t। और तो टाइम डोमेन का जो रिप्रेजेंटेशन है वो ऐसा है, लाप्लास डोमेन का जो रिप्रेजेंटेशन है वो ऐसा है। तो सेम थिंग वी आर राइटिंग, आइदर यू राइट दिस और दिस। तो व्हेन यू वांट टू रिप्रेजेंट इन टर्म्स ऑफ ग्राफ तो क्या होगा कि ये इसका डिके हो रहा है माइनस टी बाई टाउ से, तो दिस विल इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। तो जैसे जैसे टी ग्रो करेगा ये जीरो पे पहुंचेगा, एट टी इक्वल्स टू इंफिनिटी response will become 0, ये 0 पे तब टेंड करेगा। That is the whole understanding of input output relationship. So once you understood impulse response for the first order system, then you will definitely appreciate step, ramp and parabolic, right? तो किसी को समझने में प्रॉब्लम है अभी तक? Anyone has any doubt on it? Any doubt? So if you don't have doubt, then we can move further for the step response. So this is input. So coming to the step response, as I said, this is the relationship between input and output. Your input will change. So this is the Laplace transform for unit step signal.
इसका कैसे होता है, ut इक्वल्स टू 1 अगर है तो u ऑफ s इसका जो डोमेन लाप्लास डोमेन होगा दैट विल बिकम 1/s। तो ये यूनिट स्टेप सिग्नल का है। तो देखो कि व्हेन यू पुट दिस rs एज 1/s देन यू गेट cs इज लाइक दिस। और इसके बाद तुम्हारे पास यहाँ पे देखो कि जो s का यहाँ पे डिनोमिनेटर में प्रेजेंटेशन है वो इस तरह से है। So you can write a/s plus b/st plus 1 that is known as partial fraction representation। इसके बाद इसको सॉल्व कर लो, a b का वैल्यू निकाल लो and when you take inverse Laplace then you will get something like this 1 minus t by tau। अभी देखो कि फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में जब हम इनपुट स्टेप अप्लाई करेंगे अभी ये ग्रोइंग है एंड इट इज एज t टेंडिंग टू infinity your ct will tend to 1। तो यहाँ पे ये अचीव कर रहा है। यूनिट इम्पल्स के केस में योर रिस्पॉन्स वाज गोइंग टुवर्ड्स 0, इन केस ऑफ स्टेप इट इज गोइंग टुवर्ड्स 1 since we are talking about the unit step signal। Similarly for ramp response of first order systems, in case of ramp your signal is this 1/s square, so this is known as unit ramp signal। इसको यहाँ पे पुट कर दो ये वाली टर्म में, you will get something like this again 1/s square st plus 1। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन में कर दो इसको। तो पार्शियल फ्रैक्शन के बाद जब when you will solve it will give you this one। तो सिटी का जो रिस्पॉन्स है वो ऐसा है। तो when you apply ramp input then your system will behave like this। so this is the response against ramp input। now parabolic, in case of parabolic your input will change to 1/s cube, put the value at the response, यहाँ पे ये आएगा do the partial fraction thing, get inverse Laplace again back to the time response since we are talking about the time response। so your output in time response will be like this। once you plot this with respect to time the behavior will be like this। so this is the response for parabolic input। so these were the response for standard test signals: impulse, step, ramp and parabolic। so do you have any questions so far whatever we learned? so I assume no। so in this class we learned about concepts like what is time response of the system, we also understood what is transient response and steady state response of the system, and after that we learned about standard test signals which were क्या क्या टेस्ट सिग्नल्स हमने देखा अभी, anybody? So what are the test signals we discussed today? They were impulse, step, ramp and parabolic। तो you see in terms of the story कि ये स्टार्ट कैसे हुआ। हमने सबसे पहले टाइम रिस्पांस के बारे में सीखा। आई सेड सिस्टम का रिस्पांस दो डोमेन में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फर्स्ट इज इन टाइम डोमेन, सेकंड वन इज इन फ्रीक्वेंसी डोमेन। तो दिस क्लास इज अबाउट टाइम डोमेन रिस्पांस। इन लेटर क्लास वी विल लर्न अबाउट फ्रीक्वेंसी रिस्पांस आल्सो। तो टाइम रिस्पांस में हमने ये सीखा कि वो टाइम के साथ सिग्नल कैसे ग्रो करता है और सिस्टम कंट्रोल सिस्टम का रिस्पांस कैसे ग्रो करता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम।
और उसके लिए दो कॉन्सेप्ट आए थे, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स एंड स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स. In steady state response, we saw that when system reaches to the desired set point or position or anything, then that is known as the steady state response. And before achieving the steady state response, whatever state of the system is, that is known as the transient state response. तो ये हमने देखा. And then we also talked about some of the standard test signals जो कि generally life real life example में apply होता है और real time system में भी applicable है. And those signals were already said, impulse, step, ramp and parabolic. तो अब दूसरा हमारा स्टडी ये आता है कि हमने ऑलरेडी वी टॉक्ड अबाउट द मैथमेटिकल modeling of the system, which is also related to your coming assignment, which I'll upload today. I'll send through email to all of you about the first assignment of this course, and which is related to modeling. So in case of modeling, we learned that any system can be modeled mathematically, or the representation can be either in differential equation mode or Laplace transform mode, or it can have any algebraical representation also. In modern control system, it also has representation as steady state state space form. So right now we are familiar with algebraic equation model, for example, F equals to mass into acceleration simply. And differential equation, when the system is represented in terms of differential equation, for example, spring mass damper system combined system has second order representation. And third one, we talked about transfer function modeling, which is related to your Laplace representation. तो सिस्टम को हम जनरली डिफरेंशियल इक्वेशन और लाप्लास के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं मैथमेटिकली, एंड देन दे आर नोन एज मैथमेटिकल मॉडल ऑफ द सिस्टम. अभी ये फर्स्ट ऑर्डर हो सकता है और सेकंड ऑर्डर हो सकता है. तो हमारे क्लास में वी लर्न अबाउट टेस्ट सिग्नल्स, एंड देन नाउ वी आर लर्निंग व्हाट इज द रिस्पांस ऑफ दिस इनपुट टू द फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम. In this class, we have seen the response for the first order system. In coming class or next class, we will see the response for the second order system. So soon you will receive the second assignment, and second assignment will be graded for 10 marks. So total 100 में से I am planning to keep before mid-sem it will be 40, and after mid-sem it will be 60. So 10 assignments, and then 30 you will get for mid-sem exam. Again 20 marks for assignment, second assignment, and 40 marks for the end sem exam. So this is how I'm planning to go with. And if you want, or if you have any suggestion, you can always write me or you can call me. I've also sent my number. So we will end this class here. If you have any question, you can ask, or you can also write me email. Yeah, Shubham, please tell me if you want. Okay, sir. Whatever Yeah. signal we learned so far, sir, is there any relationship between these are the signal and transient state and steady state condition? हाँ है ना. अभी जो हमने सीखा कि फैन का एग्जांपल बताया, फैन के एग्जांपल में जो सिग्नल गया था दैट वाज द स्टेप सिग्नल. और स्टेप सिग्नल का जब हम अप्लाई किया करते हैं इलेक्ट्रिकल फैन में इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज, देन सपोज इट हैज़ टू रीच एट 1000 आरपीएम. तो जब वो 1000 आरपीएम पे रीच करता है, दैट इज नोन एज स्टेडी स्टेट रिस्पांस ऑफ द सिस्टम और स्टेडी स्टेट. और उसके पहले का जो रिस्पांस होता है, मान लो 1000 से पहले वो वेरी कर रहा था, तो दैट इज नोन एज ट्रांजिएंट स्टेट रिस्पांस. So this is one of the example, and most of the real time system they have transient and steady state. और इन उसका जो input application होगा, that also you can understand in terms of ramp, state, step और impulse. तो मेरा जो idea था starting का to give you the understanding about signal, transient and steady. तो अभी हमने एग्जाम्पल के थ्रू वही क्लियर किया कि हमारा जो सिस्टम होता है या तो वो फर्स्ट ऑर्डर होगा या सेकेंड ऑर्डर होगा. अभी जो अप्लाइड इनपुट है दैट जनरली फॉल्स इन दीज 4 कैटेगरीज. इट कैन गो बियॉन्ड ऑल्सो. तो हमें वो देखना है कि हम जो सिग्नल का एप्लीकेशन कर रहे हैं वो किस कैटेगरी में है. और उसके बाद जब हम सिग्नल अप्लाई करते हैं तो उसका ट्रांजिएंट स्टेट होगा और उसका स्टेडी स्टेट होगा.
So since you have asked, I'll take another 1 minute to explain you. जैसे इस केस में क्या हुआ कि हम यहाँ तक बोल सकते हैं कि इसका ट्रांजिट स्टेट है। Let me take the pen. तो यहाँ तक बोल सकते हैं कि ये ट्रांजिएंट है जब ये स्टेडी स्टेट रीच कर जाता है। व्हेन आई सेड ct टेंड्स टू 0, जब 0 पे पहुंचने लगता है तो दैट विल बिकम स्टेडी स्टेट रिस्पांस फॉर द केस ऑफ इंपल्स रिस्पांस। स्टेप के लिए भी ऐसा होगा। एनी अदर क्वेश्चन फ्रॉम एनीवन? Hello. Hello. अमित, या Sir, what is the real life example of parabolic response? Yeah, very good question. So I was expecting somebody to ask this question. So can someone tell me tell this answer? इसका कैसे होगा रियल टाइम में? ओके, तो हम सब ने ड्रोन के बारे में सुना है, जो अनमैन्ड एरियल व्हीकल होता है। आजकल देखो मैरिज के फंक्शन में भी हम ड्रोन का एप्लीकेशन देखते हैं। अगर जो पायलट है वो पैराबोलिक अप्लाई कर सकता है। उसका जो इनपुट का वेरिएशन होगा अगर वो पैराबोलिक के टर्म्स में है, मतलब स्लोली उसने इनपुट देना स्टार्ट किया और फिर सडनली उसको जंप कराया, तो इट मे नॉट बी मैथमेटिकली एग्जैक्टली एज पैराबोलिक, बट अगर पायलट स्किलफुल है तो पायलट वो पैराबोलिक अप्लाई कर सकता है। इवन इन केस ऑफ रियल एयरक्राफ्ट, पायलट कैन गिव पैराबोलिक टू सर्टेन एक्सटेंट फॉर सम टाइम। इट्स नॉट लाइक दैट वो एप्लीकेशन लंबे टाइम के लिए चलेगा। So it is very much possible in case of aircraft, in case of drone, or in case of real-time system also. Even if you want to regulate potentiometer, we can apply the parabolic. हम लोग slowly start करेंगे and then we'll suddenly increase the input. RAM के केस में क्या होता है कि जो वेरिएशन होता है वो कांस्टेंट होता है, बट पैराबोलिक के केस में हम पैराबोलिक को भी फॉलो कर सकते हैं विद द एग्जांपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। वेरी गुड क्वेश्चन अमित। एनी अदर क्वेश्चन? No, sir. Okay, very good. So we will end this class today here, and I'll upload the next assignment. सर पीपीटी भी शेयर कर दीजिएगा। ओ अभी हाँ तक की निखिल आया। यस निखिल, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी। तो मैं थोड़ा सा उसमें करेक्ट करके और भेजता हूँ 1-2 दिन में इसको। हाँ सर चलेगा कैसे भी, बट अभी तक जो हुआ है वहां तक की। हाँ हाँ, तो अभी हम यूनिट 2 तक भेजेंगे एंड व्हेन वी विल फिनिश यूनिट 3 आई विल सेंड यू द स्लाइड फॉर यूनिट 3, और यूनिट 3 ओके का भी हम कर सकते हैं। ओके, थैंक यू निखिल। सो लेट्स मीट। वी डोंट हैव क्लास ऑन वेडनेसडे, सो एम आई राइट? वेडनेसडे तो क्लास नहीं होगा, छुट्टी है उस दिन। Yes, sir. Yes, sir. Okay, so let's meet on Thursday. जो assigned time है, I think it's 11:45. So we will see you on 11:45, like on Thursday at 11:45. So thank you so much. Thank Or you. feel free to ask if you have any questions. You can email me. So thank you.